Okay, hello friends, I'm Rajdeepak Singh, and as I've told you, this is my new YouTube channel. So, in this particular video, I'm going to tell you on FCI AGM numerical ability. We are going to discuss on numerical ability, one of the topics whose name is average. Okay, so in this particular video, if you watch the video, you will get definitely 2 to 3 question out of those 180 question in the exam. So, without wasting time, let's start the video. So without before starting this, I just want to tell you that this is a bilingual video, that हम दोनों लैंग्वेज में इसमें मतलब ये वीडियो में बात करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ एवरेज. तो डेफिनेशन ऑफ एवरेज इज़ बेसिकली द total sum of observations upon total sum of observation upon number of observation. This is the definition of average. Okay, like if suppose you have 24, 25 and 29, there are 3 numbers. You have to calculate the average of these 3 numbers. What you have to do is to sum the you have to sum these all 3 number, like 24, 25, 49, and 49, 29 is 59, 69 and 78. And what you have to do, total number of observation is 1 2 3 divided by 3. So your answer is 3 to the 6, 3 6 18, 26 is the average of this. Okay, so this is the basic definition of average. I know everybody know this particular thing, that's why I'm not emphasizing that much on this definition. In this particular video, I'm going to tell you one of the technique which is very much useful, and the technique which is very much useful in solving every single question of average. Okay, so it is the topic, basically the name of the topic that we are going to discuss today is inclusion and exclusion. Inclusion and exclusion with the help of cross multiplication method. Cross multiplication method. Okay, so in this particular video, I'm going to tell you about the inclusion and exclusion based on cross multiplication method. So this is very interesting. If you learn this concept, then definitely you can do every single questions asked in average. Okay, so let me tell you the definition of inclusion and exclusion, what actually it means. So basically inclusion and exclusion, basically the definition of inclusion and exclusion, before starting I just want to tell regarding the what is exclusion and what is inclusion. Okay, inclusion का मतलब होता है कि आप किसी में आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो, और exclusion का मतलब होता है आप किसी चीज़ को subtract कर रहे हो. Let's take an example. Let's suppose there are x number of students and we have average A. ठीक है, तो अगर इसमें आप किसी एक स्टूडेंट जिसका नाम है A उसको ऐड कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इंक्लूजन. और अगर इसी में ही इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में किसी एक स्टूडेंट का नाम है B, अगर आप उसको निकाल रहे हो इस ग्रुप में से, तो वो हो जाएगा एक्सक्लूजन. ठीक है, तो ऐसा करने से बेसिकली क्या होता है, इट अफेक्ट्स द एवरेज. ठीक है, इट एक्चुअली अफेक्ट्स द एवरेज, कि एवरेज पे इसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, अगर आप इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड करोगे लाइक टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में से जो स्टूडेंट है, तो जो एवरेज होगा उस पर डायरेक्टली इसका इफेक्ट पड़ेगा. अब कैसे पड़ेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस फर्स्ट, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग. This concept I am telling you by the example. In the exam, what you are going to get like 4 to 5 lines of questions.
इन इंग्लिश, एंड दे आर लाइक वेरी मच घुमाने वाले क्वेश्चंस दिए होंगे एग्ज़ाम में आपको, ठीक है, बहुत कंफ्यूज वाले। सो मैं आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। तो केस फर्स्ट में क्या है आपका कि जो हम ऐड कर रहे हैं, केस फर्स्ट में क्या है जो हम ऐड कर रहे हैं वो टू इंक्लूजन केस ले रहे हैं, ठीक है, ऐड टू इंक्लूजन केस, ठीक है, यानी दो स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। अब कैसे, देखो, लेट सपोज x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल जिनका एवरेज क्या है a, ठीक है, और दो स्टूडेंट हैं जिनका नाम है a और एक का नाम है b, ठीक है। एग्ज़ाम में सेम टू सेम डिट्टो ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं। तो a और b अगर हम x ग्रुप में ऐड कर रहे हैं और बेसिकली उसका एवरेज लेट सपोज हम कह सकते हैं कि अगर 4 से डिक्रीज़ कर रहा है तो हमें एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि आप a प्लस b का वैल्यू हमें बता दो। तो कैसे निकालना है वही, ये इसलिए मैंने आपको बताया कि दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकालते हैं a प्लस बी को, देखो a प्लस बी को निकालने के लिए हम जब भी ये इक्वल्स टू से जो पहले वाला होगा ये हमेशा, ये फार्मूला हमेशा हमें ये सम ऑफ द एजेस देगा, हमेशा याद रखना। इन दोनों जो ऐड कर रहे हैं इनके एजेस का, या फिर इनका एज हो या वेट हो या कुछ भी हो, ठीक है, इनका सम देगा हमेशा। तो a प्लस बी को निकालने का ये फार्मूला है कि लेट सपोज कि यहाँ पे x ग्रुप था, जैसे कि मैंने बताया उनका एवरेज a है, a और b को हम ऐड करना चाहते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि टोटल एवरेज में 4 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप a और b को ऐड कर रहे हो यानी दो बच्चे ऐड हो रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे दो बच्चे हैं टोटल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इन दो बच्चों को 2 लिख दो और इसको a से एवरेज से इनटू कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि हमें ये साइन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस, वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बच्चे ऐड हो रहे हैं तो प्लस साइन आ गया, और यहाँ पे एवरेज डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 4 को आप एज इट इज़ यहाँ पे उतार दो, ठीक है। अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, अब ये दो बच्चे जब ऐड होंगे ग्रुप में x वाले तो कितना हो जाएगा टोटल, x प्लस 2 हो जाएगा, सिंपल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 2a माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। सो दिस इज़ द सम ऑफ द एजेस, ये आपको ऐसे एजेस का सम मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, इस केस को हम एक एग्ज़ाम्पल से, लाइक मैं वैल्यूज़ लूँगा यहाँ पे, तो उससे मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आया। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेट टॉट बाय एनी टीचर इन ऑनलाइन यूट्यूब, ठीक है। I know that there are a lot of good teachers online, but none of the teachers have taught you on inclusion and inclusion cross multiplication method. So I am talking of, I am teaching you the cross multiplication method, which is very unique, और ये बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज कितना है, 30 है, लेट सपोज, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। और यहाँ पे एक ए स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट है जो ऐड कर रहे हैं, और एवरेज में कितना डिक्रीज़ हो रहा है, -2 का, ठीक है। एवरेज में टोटल -2 का डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको यहाँ लिख दो, -2 को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इसको हमें निकालना था a प्लस बी, कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था 2 है तो 2 इंटू 30 माइनस, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस लिख दिया। यहाँ पे 2 एज इट इज़ था, अब यहाँ पे 25 है। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये 25 का ग्रुप है, दो बच्चे ऐड हो रहे हैं, कितना हो जाएगा, 27, सिंपल। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 माइनस 27 दूनी 54, 54, 60 माइनस 54 कितना हो गया, बताओ जल्दी, 60 माइनस 54, यू आर गोइंग टू एड 6 इज़ द आंसर। दैट्स वेरी सिंपल, ओके। सो द सम ऑफ द एजेस आपका क्या आ जाएगा, 6, यानी जो दो इसमें ऐड हो रहे हैं उनका जो एज का जो सम है वो 6 आएगा,
ठीक है। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे, सेकंड केस डिस्कस करेंगे। अब इस केस में हम क्या डिस्कस करेंगे कि दो बच्चे हैं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं। मतलब पहला केस तो हमने इंक्लूजन वाला किया, अब सेकंड केस हम एक्सक्लूड वाला करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूड। अब इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताऊंगा आपको, मैं उससे नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास 20 बच्चे हैं जिनका टोटल एवरेज 100 है। आप वेट कह सकते हो या फिर उनकी हाइट कह सकते हो, कुछ भी, ठीक है। 100 है, ठीक है। 20 बच्चे हैं जिनका एवरेज 100 है। अब मैंने बोला कि 2 बच्चे एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक का ए है और एक बच्चा बी है, ठीक है। और जिससे कि हमारा एवरेज जो है वो +5 इंक्रीज़ हो जा रहा है। इनको एक्सक्लूड यानी इनको बाहर निकालने से हमारा एवरेज इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो हमसे पूछा है कि a + b की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल, मैंने बताया था आपको a + b जो एक्सक्लूजन में, कि यहाँ पे 2 बच्चे जा रहे हैं, फिर आप 2 लिखो इनटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है। प्लस माइनस कैसे करोगे? ये 2 बाहर निकल रहे हैं तो माइनस हो गया, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगा दो। अब ये एज इट इज़ 5 यहाँ पे उतार दो। यहाँ पे इसमें बस ये ध्यान रखना है कि टोटल 20 हैं, 2 बाहर निकल रहे हैं, तो कितने बच गए? 18, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 × 100 200 माइनस 18 5 90। तो 200 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 110, ठीक है। 110 इज़ द आंसर, 110 इज़ द आंसर। कितना आ जाएगा आंसर? 110 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकंड केस था जिसमें हमने एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट लिया। अब आखिरी केस बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में, ये आखिरी है, और ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करना, आपको डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलने वाला है, ठीक है। आपका इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एवरेज के। अगर नहीं होंगे तो आप मेरे को सेंड करना फ़ोटो, मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओगे एग्ज़ाम में तो वो जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज देते हैं ना, वो इस डिफ़िकल्ट लैंग्वेज पे भी भारी पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। केस थर्ड देख लो आप पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। केस थर्ड में क्या होगा? पहले केस में हमने पढ़ा था 2 इंक्लूजन, दूसरे केस में हमने एक्सक्लूजन पढ़ लिया, दोनों एक्सक्लूजन। अब इस वाले केस में 1 इंक्लूजन और 1 एक्सक्लूजन होगा, ठीक है। 1 इंक्लूजन और 1 एक्सक्लूजन होगा, एक्सक्लूजन, ठीक है। 1 इंक्लूजन एंड 1 एक्सक्लूजन। तो थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकूँ थर्ड केस को, ठीक है। तो इसमें लेट सपोज़ हमारे पास, इसको भी मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ। लेट सपोज़ हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज एज 100 है। अगेन इसमें एक स्टूडेंट ए है जो ग्रुप में जा रहा है, एक स्टूडेंट बाहर निकल रहा है। तो इससे टोटल पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है कि हमारा जो एवरेज है वो -5 से डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो हमको पूछा है कि इसमें ए और बी दोनों का हमें एज बता दो, एज के बेस पे ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी का एज बता दो सम। तो इसमें कैसे निकालोगे? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज है, ठीक है। इसमें बस आप हमेशा याद रखना, पहले तो हम इक्वल्स टू के बाद वाला सॉल्व करेंगे। हमें ये तो पता है यहाँ पे हमेशा सम ऑफ एजेस मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब मैं इसमें बताता हूँ चेंज क्या है। इसमें चेंज ये है कि इसमें देखो, यहाँ पे एक तो इंक्लूड हो रहा है और एक एक्सक्लूड हो रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा? 0, कोई मानने नहीं। अभी हम हमेशा इसको इससे इंटू करते थे तो 0 × 100 करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होते थे कि यहाँ पे जैसे प्लस और माइनस है, एक इंक्लूड है तो प्लस माइनस न्यूट्रल 0 हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस एज इट इज़ उतार दिया। अब ये 5 से हम क्या करेंगे, इसको इंटू करते थे कब? पहले हम देखते थे कि यहाँ पे ए और बी का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, एक सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है, तो नेट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 5 × 20 होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा -100। बस इसमें यही याद रखना है कि यहाँ पे माइनस का ज़्यादा यूज़ नहीं है, यहाँ पे साइन का ज़्यादा यूज़ नहीं है, आपको बस इससे मतलब है 100 से, ठीक है। अब 100 से कैसे मतलब है मैं बताता हूँ आपको। इसमें 100 से ही क्यों मतलब है,
पहले तो आपका 100 आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ये याद रखना है, इसमें बहुत एक थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड इज़ कि यहाँ पे जब हम एक को ऐड कर रहे हैं, व्हेन वी ऐड वन स्टूडेंट एंड व्हेन वी सब्सट्रैक्ट, व्हेन वी एक्सक्लूड वन स्टूडेंट, द टोटल एवरेज इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग बाय -5। ओके, तो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज़, हमें ये समझने की ज़रूरत है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर टोटल -5 हो रहा है तो जो ऐड हो रहा है वो बड़ा होगा। इसका मतलब वेदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए, हमको ये बस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। तो देखो, अगर ए ऐड हो रहा है और बी एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे -5 है, एवरेज डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि हमेशा याद रखना कि अगर जो चीज़ ऐड हो रही है, एक्सक्लूजन तो होगा ही होगा, जो चीज़ ऐड हो रही है उसकी वजह से एवरेज डिक्रीज़ कर रहा है। आई नो दैट दे बोथ हैव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमें इंक्लूजन वाले पे ध्यान देना है कि इंक्लूजन की वजह से अगर 5 डिक्रीज़ कर रहा है या फिर एक्सक्लूजन की वजह से 5 डिक्रीज़ कर रहा है, तो हमें इन दोनों में बताना है कि वेदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो अगर 5 इंक्रीज़ कर रहा है, लेट सपोज 5 डिक्रीज़ कर रहा है इस केस में, तो अगर 5 डिक्रीज़ कर रहा है तो इंक्लूजन वाले में आप क्या करोगे कि अगर हम किसी स्टूडेंट को लेट सपोज ग्रुप में ऐड करते हैं, लेट सपोज, और अगर एवरेज डिक्रीज़ करने लगता है, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे कि वो स्टूडेंट का जो एज है वो कम है। समझो इस चीज़ को, वो स्टूडेंट का एज कम है और जो स्टूडेंट बाहर निकला है उसका एज ज़्यादा है, यानी कि बी इज़ ग्रेटर देन ए इस केस में होगा। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे +5 होता तो इसको मैं फिर से समझाऊंगा कि अगर यहाँ पे एवरेज इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि अगर कोई एक स्टूडेंट किसी ग्रुप में ऐड हो रहा है तो और +5 एवरेज इंक्रीज़ कर रहा है, तो एक्चुअली में यहाँ पे ए बड़ा होगा बी से, यानी कि ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। क्योंकि हमने इस केस में माइनस लिया था तो हम माइनस पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर है ए से, यानी कि बी माइनस ए करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है इस वाले 1 एक्सक्लूजन और 1 इंक्लूजन में, ठीक है। दैट बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो b माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 100 हो जाएगी। b माइनस ए इज इक्वल्स टू 100। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, वैल्यू लेकर के, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सेम टू सेम आपको ऐसे क्वेश्चंस में भी मिलेगा। क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में आपको 1-2 क्वेश्चंस करा दूंगा, बहुत ही टफ वाले, जिससे आपको इजी वाले क्वेश्चन ईजिली हो जाए। देखो, if you have 20 students, their average is 100, and if let's suppose one of the students whose age is 15, we are going to add his age to this 20, and one of the student which is B is excluding from this total 20, and the average is actually increasing by +5, तो we have to calculate the value of B। आपको B की वैल्यू निकालनी है। अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, मैंने बोला था इसमें माइनस का यूज़, प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, 5 को 20 से इंटू कर देना है, 100 आ गया। बस चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। तो क्योंकि एवरेज में +5 क्या हो रहा है, एवरेज इंक्रीज़ कर रहा है, तो एक्सक्लूजन आखिर में 15 बड़ा होगा। 15 बड़ा होगा यानी कि b माइनस 15 बड़ा होगा ना। एक्सक्लूड कर रहा है तो एवरेज इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि b की वैल्यू निकालनी है। तो b क्या हो जाएगा, सॉरी 15 बड़ा होगा, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 15 बड़ा होगा, तभी तो एवरेज इंक्रीज़ कर रहा है ना। आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे अगर एवरेज +5 से इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब कि जो बच्चा इसमें जा रहा है वो बड़ा है, यानी कि 15 इज़ ग्रेटर देन बी, देन 15 माइनस बी इज इक्वल्स टू 100। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया है। एक्चुअली में आप इसको क्या कर सकते हो, 15 वेट, यहाँ पे 15 और बी को एक्सचेंज कर दो, ये वाला 15 हो जाएगा और ये वाला ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो वैल्यूज़ आप इधर उधर कर सकते हो, क्वेश्चंस तो उसी के हिसाब से बनाएंगे ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में ए माइनस 15 होगा,
ठीक है, कि a ऐड हो रहा है और b -15, तो जब आप a की वैल्यू निकालोगे इट इज़ 115, सिंपल है, ठीक है। सो in this video I have discussed the three concepts of inclusion and exclusion. Case 1 I have tell you about the students we are the case 1 is of two students we are adding a and b. केस सेकंड में मैंने आपको बताया कि दो को कैसे एक्सक्लूड करते हैं, और केस थर्ड में मैंने बताया कि आपको एक इंक्लूजन और एक एक्सक्लूजन कैसे करते हैं. ओके, so this is regarding the concept of average. By doing this video you actually cover the entire question of average. You are not going to get any difficulty in any of the question of average. And if you have any doubt, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो इससे नहीं होने वाला, just apply one time, just apply to the question of the concept which I have tell you. Just apply to the questions. In every single question you get the answer definitely by applying the cross multiplication method. CMM इसे कहते हैं. You are going to get the exact answer, ठीक है, by applying these three techniques of exclusion and inclusion. So this is it. In this video I just want to cover the average topic. You are definitely going to get 2 to 3 marks for FCI AGM out of those 180. In the next video we will cover the some different topic. If you have any अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, यू जस्ट कमेंट दैट सर कि आप हमें ये टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बताओ. आई विल डेफिनेटली कम टू यू बाय मेकिंग a video on that particular topic. Okay, thank you so much. And lastly, if you like the channel, please do subscribe and like and comment. If you subscribe, it will actually boost my motivation to upload more and more videos, and it actually makes me feel confident that okay, students are taking benefit from these videos. So try to take advantage of my teaching and please subscribe the video. Thank you so much.